نصوص کی روشنی میں اپنے عنوان کو انہوں نے کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ شیخ نے ایک بات کہی، بڑا علم حقیقت میں شیخ کا بڑا پن ہے، اور ہمارے اندر حصول علم کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے وہ آپ جیسے علماء کو دیکھ کر سن کر ہی ہوا۔ سب سے پہلے شیخ کا خطبہ میں نے غالباً 2005 میں سرزمین ہاسپٹ کی مسجد میں سنا، تو سب سے پہلی ملاقات اور سماعت خطبہ سرزمین ہاسپٹ ہی میں ہوا، اور اس وقت آپ کے خطبے کو بہت پسند کیا گیا تھا، اور شاید کے بعد میں پھر ایک مرتبہ مدعو بھی کیا گیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے کہنے کو قبول فرمائے۔ مجھے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے قیامت کی ہولناکی۔ بلا کسی تاخیر اور تمہید کے میں اصل مدعے پہ آنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، حدیث جبریل، ہم سب جانتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل، ایک آدمی ہمارے پاس آیا، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے سفید تھے، شدید سواد الشعر، اس کے بال کالے تھے۔ وہ آدمی آیا، ہم اس کو نہیں پہچانتے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا، اور اس پر سفر کے کوئی آثار بھی نمایاں نہیں تھے۔ وہ آدمی آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھٹنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو ملا کر بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھا اور کہنے لگا اخبرنی یا محمد عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں بتلاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام یہ ہے تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے کہا تم نے سچ کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہو گئے، ایک تو یہ آدمی خود سوال کر رہا ہے اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتلاؤ۔ جب اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتلایا تو خود کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس آدمی نے کہا اخبرنی عن الایمان، اے محمد مجھے ایمان کے بارے میں بتلاؤ۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ سنو، اس ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ ایک ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ پھر اس آدمی نے کہا تم نے سچ کہا۔ یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہو گئے، ایک تو آدمی خود سوال کر رہا ہے، جواب دینے کے بعد کہہ رہا ہے آپ نے سچ کہا۔ پھر اس آدمی نے کہا اخبرنی عن الاحسان، اے محمد احسان کے بارے میں بتلاؤ۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو،
اگر یہ ذہن میں تصور نہ آئے، تم یہ خیال نہیں کر رہے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن تو تم یہ ذہن میں تصور کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا تم نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس کے بعد چوتھا سوال اٹھا، اخبرنی عن الساعہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سائل زیادہ جانتا ہے مسئول سے زیادہ قیامت کے بارے میں۔ تو پھر اس آدمی نے سوال کیا اخبرنی عن اماراتها، اس کے علامات نشانیوں کے بارے میں بتلائیے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا قیامت کی نشانی کے تعلق سے، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے کہا جب تم لونڈیوں کو دیکھو وہ اپنے آقاؤں کو جنم دینے لگیں گی، ننگے پیر، بھوکے پیاسے، اور جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، بکروں کے چرواہے کو تم دیکھو گے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب سے کہا کیا تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا؟ عمر بن خطاب نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں وہ کون تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حدیث جبریل میں یہ بتایا گیا قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کو کسی کو نہیں ہے، مگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں کو بتلایا۔ قیامت کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر 100 سے زیادہ مرتبہ قیامت کا اور اس کے مشتقات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے، اس دنیا کو دوام نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا سامان، یہ دنیا سراسر دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا کو دوام نہیں ہے۔ یہ بادشاہی، یہ جاہ و اجارہ داری، یہ جاہ و حشمت، یہ مال و دولت، یہ دنیا کی چیزیں، ہم اور آپ ایک زمانے تک ہم رہیں گے، اس کے بعد ہم فنا ہو جائیں گے۔ دنیا کو دوام نہیں ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قیامت اور اس کے مشتقات سے بنی نوع انسان کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، تاکہ بنی نوع انسان مسلمان قیامت کی ہولناکی، اس کی تباہی، اس کی بربادی سے ڈر کر موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کریں، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کو بجا لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواہی سے اجتناب کرے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اگر تم رسول کا انکار کرو گے تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جس دن کی سختی کی وجہ سے یہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس آیت کریمہ میں بتایا یہ گیا قیامت کی ہولنا کی، قیامت کی تباہی، ایسی خطرناک تباہی ہوگی، ایسی خطرناک ہولنا کی ہوگی اس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، جس کی ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا اور یہ رب کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن دل پلٹے جائیں گے، کلیجے اور دل پلٹے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। अल्लाह ताला ने फरमाया कामयाब मोमिन वो हैं जिनको उनकी तिजारतें खरीदो फरोख्त नमाज से, अल्लाह ताला के जिक्र से, ज़कात से गाफिल नहीं करेंगी। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारा वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह। यहाँ पर मोमिनीन की निशानी को बयान करते हुए अल्लाह ने कहा मोमिन ऐसे होंगे, ऐसे कामयाब होंगे, एक जगह पर वो तिजारत करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, और ये तिजारत, ये खरीदो फरोख्त उनको नमाजों से, ज़कात से, अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल नहीं करेंगे। हमारी तिजारतें कैसी हैं, हमारा खरीदो फरोख्त कैसा है, हमारा माहौल और हमारा आलम ऐसा है, हम एक मकाम पर तिजारत खरीदो फरोख्त करते हैं तो अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाते हैं, नमाजों से और ज़कात अदा करने से गाफिल हो जाते हैं। मगर मोमिनीन की मिसाल बयान करते हुए अल्लाह ने कहा रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मोमिन कामयाब लोग एक जानिब तिजारत करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, और ये तिजारत, ये खरीदो फरोख्त उनको नमाज से गाफिल नहीं करती, ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं होते। यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार, ये तिजारत, ये खरीदो फरोख्त मोमिनों को उस दिन से गाफिल नहीं करते जिस दिन से डरना चाहिए। मोमिनीन की निशानी बयान करते हुए अल्लाह ने कहा यख़ाफ़ून यौमा, वो उस दिन से डरते हैं यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार, जिस दिन दिल उल्टे और पलटे जाएंगे और दीदे पथरा जाएंगे। कयामत का दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन आंखें अचानक फट जाएंगी। वक़तरबल वअदुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिय शाख़िसा अबसारुल लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। कयामत का दिन ऐसा दिन होगा जब सच्चा वादा करीब आ जाएगा। फ़इज़ा हिय शाख़िसा अबसारुल लज़ीना कफ़रू, तो काफिर की आंखें यकायक अचानक फट जाएंगी और वो कहेंगे हाय अफसोस, क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा, इस कयामत के दिन से हम गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम भी जालिम थे। कहा जा रहा है कयामत के दिन जालिम लोग कफे अफसोस का मुज़ाहरा करेंगे, कहेंगे या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा, इस दिन से हम गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम जालिम थे। अज़ीज़ान मिल्लत, कयामत का दिन वो दिन होगा, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वअन्दिरहुम यौमल आज़िफ़ा इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों को करीब आने वाले दिन से डराओ। करीब आने तो दिन होगा जिस दिन कलीजे मुंह को आ जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वअन्दिरहुम यौमल आज़िफ़ा, वअन्दिरहुम यौमल आज़िफ़ा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को करीब आने वाले दिन से डराओ जिस दिन कलीजे मुंह को आएंगे। कयामत का दिन ऐसा दिन होगा, कयामत का दिन ऐसा दिन होगा जिससे दिल कांप रहे होंगे, लरज़ रहे होंगे। यौम तर्जुफु राजिफा तत्बउहा रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, उस दिन जमीन कांपने लगेगी। यौम तर्जुफु राजिफा तत्बउहा रादिफा, अचानक एक झटका आ जाएगा। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, उस दिन बहुत सारे दिल लरज़ रहे होंगे, कांप रहे होंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क़यामत से मुतनब्बा करते हुए फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत, क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा, ये सूरज जो आज चमक रहा है, मगरिब मशरिक से तुलू होकर मगरिब में गुरूब होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत पाकर अल्लाह ताला के हुक्म से फिर से मशरिक से तुलू होता है। मगर एक दिन ऐसा आएगा इस सूरज की रमक को छीन लिया जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत,
सूरज को लपेट दिया जाएगा। वइदन नुजूम कदरत, ये चमकदार सितारे जो दुनिया आलम को और आसमान दुनिया को मुज़य्यन किए हुए हैं, सितारों की वजह से ये आसमान खूबसूरत नजर आ रहा है। क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा, वइदन नुजूम कदरत, ये सितारे बेनूर हो जाएंगे। वइदल जिबालु सुय्यरत, वइदल जिबालु सुय्यरत, क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा, ये बुलंदो बाला पहाड़, ये बड़े बड़े पहाड़ जो कैफियत में चट्टान की मानिंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन के बैलेंस के लिए उनको नस्ब किया हुआ है। इन पहाड़ों को रेत के मानिंद चला दिया जाएगा, ये रेत के मानिंद हवाओं में बिखरने लगेंगे। क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा, वइदल इशारु उत्तिलत, 10 माह की हामिला ऊँटनी भी मुअत्तल हो जाएगी, लोग उसको छोड़ देंगे। क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा, वइदल बिहारु सुज्जिरत, ये ताहद निगाह नजर आने वाले समंदर, ये वसी समंदर, इनमें आग को भड़का दिया जाएगा। क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा। क़यामत से अल्लाह ताला ने लोगों को मुतनब्बा किया है, डराया हुआ है। उमूमन ऐसा होता है जब इंसान क़यामत पर यकीन नहीं रखता, क़यामत से बिल्कुल गाफिल हो जाता है, तो इंसान बेशुमार इस्यान और तुग़यान में मुब्तला हो जाता है, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लग जाता है। वो हमेशा हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत का इर्तिकाब करता है। कुफ़ार मक्का को देख लीजिए, कुफ़ार मक्का की जिंदगी मासियतों की जिंदगी, गुनाह की जिंदगी, इस्यान और तुग़यान की जिंदगी, हराम की जिंदगी। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क़यामत के दिन से डराया। वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पर ईमान लाने की बजाय वो आपका मजाक उड़ाया करते थे। देखो मोहम्मद ये कैसी कैसी नई बातें कर रहा है, ये कह रहा है मरने के बाद इंसान फिर जिंदा होंगे, क़यामत का दिन कायम होगा, हिसाब व किताब होगा, जज़ा सज़ा होगी। ये कैसा मामला है? ये मोहम्मद कैसी कैसी नई बातें बता रहा है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अन्ना यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया क़यामत वाक़े होकर रहेगी, क़यामत आने वाली ही है। अगर इंसान मौत से गाफिल हो जाए, मौत उसके ज़हन में न रहे और फिर क़यामत से भी गाफिल हो जाए, तो फिर इंसान कसरत से गुनाह करने लग जाता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत का इर्तिकाब करने लग जाता है, वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, वो हमेशा हराम कामों का इर्तिकाब करता है। अगर वहीं पर इंसान के ज़हन में हमेशा मौत मतमहे नजर रहे, उसको ये यकीन हो कि मौत आने वाली है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर हम बड़े बड़े बुर्ज और खलीफाओं, बड़े बड़े किलों में भी बंद हो जाएं, तो मौत वहां पर भी आकर दबोचने वाली है। अगर इंसान के दिलो दिमाग में क़यामत का मंजर आ जाए, अगर इंसान के दिलो दिमाग में क़यामत के वाक़ियात ताज़ा रहे, तो इंसान कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता, हमेशा वो चाहेगा अल्लाह ताला की इबादत करे, अल्लाह ताला को राज़ी करे। यही वजह है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 100 से ज़ायद मर्तबा कुरान और लफ्ज़ क़यामत और उसके मुस्तक़ात से उम्मत मुस्लिमा को डराया और धमकाया। क़यामत कैसे कायम हुई, कोई बता सकते हैं? वो कोई क़यामत के लिए कितने सूर को फूंका जाएगा? जी 7 मरतबा सूर को फूंका जाएगा। कोई भी बता सकते? वो कोई क़यामत के लिए 2 मरतबा सूर में फूंका जाएगा। कितनी मरतबा? 2 मरतबा सूर में फूंका जाएगा। अल्लाह ताला का हुक्म पाने के बाद पहली मरतबा सूर में फूंका जाएगा। जैसे ही पहली मर्तबा सूर में फूंका जाएगा, ये दुनिया फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ये दुनिया फना हो जाएगी, ये दुनिया में बसने वाली मखलूकात फना हो जाएंगे, सिवाय उसके जिसे अल्लाह ताला चाहे। अकेली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है जिसको बका है। पहली मर्तबा सूर में फूंका जाएगा।
फिर एक मुद्दत के बाद दूसरी मर्तबा भी सूर में फूंका जाएगा। जब दूसरी मर्तबा सूर में फूंका जाएगा, यौमा युनफखु फिस्सूरि फतअतूना अफवाजा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया जिस दिन दूसरी मर्तबा सूर में फूंका जाएगा तो लोग अपनी कब्रों से निकल कर मैदान महशर की तरफ भाग खड़े हो जाएंगे। पहली सूर और दूसरी सूर में कितनी मुद्दत होगी? पहली सूर और दूसरी सूर में जो मुद्दत होगी वो कितनी मुद्दत होगी? मुद्दत का सही अंदाजा किसी भी पता नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, वो कहते हैं मा बैन नफ़ख़तैन अर्बऊन, दोनों नफ़ख़ों के दरमियान जो मुद्दत होगी वो 40 होगी। कितनी? 40। अब यहाँ पर 40 से 40 दिन मुराद है। अबू हुरैरा से पूछा गया यहाँ पर 40 से क्या मुराद है? अबू हुरैरा ने कहा मैं नहीं जानता। लोगों ने कहा यहाँ पर 40 से मुराद क्या 40 दिन है? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। लोगों ने पूछा क्या 40 से मुराद यहाँ पर 40 हफ्ते? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। फिर लोगों ने पूछा क्या यहाँ पर 40 से मुराद 40 महीने हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। पूछा गया क्या 40 साल है? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। बहरहाल एक लंबी मुद्दत के बाद दूसरी सूर फूंका जाएगा। जब दूसरी मर्तबा सूर में फूंका जाएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युहशरुन्नासु अला सलासी तराइक, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में लोगों को 3 गिरोहों में मैदान महशर की तरफ लेकर जाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया रागिबीन व राहिबीन, एक गिरोह रागिबीन का और दूसरा गिरोह राहिबीन का। रागिबीन से मुराद वो लोग जो जन्नत की रग़बत रखा करते थे, राहिबीन से मुराद वो लोग जो जहन्नम से बचने की कोशिश करते थे। इनमें से कुछ लोग एक ऊंट पर 2 लोग सवार होंगे और मैदान महशर की तरफ चले जाएंगे। कुछ लोग एक ऊंट पर 3 लोग सवार होंगे और मैदान महशर की तरफ चले जाएंगे, और एक ऊंट पर 4 लोग बैठकर मैदान महशर की तरफ चले जाएंगे, और कुछ लोग एक ऊंट पर 10 अफराद सवार होकर मैदान महशर की तरफ चले जाएंगे। आपने फरमाया युहशरुन्नासु अला सलासी तराइक, लोगों को 3 गिरोहों में तकसीम करके उनको मैदान महशर की तरफ हाँका जाएगा। एक गिरोह रागिबीन का और दूसरा गिरोह राहिबीन का, और तीसरा गिरोह होगा वो काफिरों का गिरोह होगा। उसके ताल्लुक से आता है एक आग आएगी और आग उनको हंका कर मैदान महशर की तरफ लेकर चली जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। आज हम प्यार और मोहब्बत से एक जगह बैठे हुए, एक दूसरों के घर में आना है, मेहमान नवाजी जारी है, रिश्तेदारी कायम है, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदारी के ताल्लुक से ही कुरान हदीस की रोशनी में बातें हुई। ये रिश्तेदारी, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये मिलजुल कर बैठना क़यामत के दिन नहीं होगा। क़यामत के दिन सारे के सारे लोग परेशान खड़े होंगे। लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आजिज़ी व इंकिसारी के साथ खड़े होंगे। ना सिर्फ लोग बल्कि अल्लाह ताला के फरिश्ते भी सफ बसफ बांध कर अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी व इंकिसारी का मुज़ाहरा करते हुए खड़े होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इंकिसारी का मुज़ाहरा करते हुए सब बसब बांध कर अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाएंगे। इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, किसी के अंदर इतनी जुर्रत और जसारत नहीं होगी वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर लब कुशाई करे। क़यामत का दिन ऐसा खतरनाक दिन होगा। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला आवाज लगाएंगे, निदा लगाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है,
आज किसका इख्तियार है, किसका इख्तिदार है? दुनिया है। दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी को बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ताला ने किसी को हुक्मरानी अता फरमाई, अल्लाह ताला ने किसी को सरदारी अता फरमाई, मगर ये सरदारी, ये बादशाही, ये हुक्मरानी कल क़यामत के दिन सलब कर ली जाएगी और सारे के सारे इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथों में होंगे। और अल्लाह ताला सवाल कर रहा होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही? मुझे बताएं, अल्लाह ताला ये सवाल क्यों करेगा? करते हैं अल्लाह ताला ये सवाल कल क़यामत के दिन क्यों करेगा? जी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को कोई ना कोई चीज अता फरमाई। कोई घर का मालिक, कोई जमीन का मालिक, कोई जायदाद का मालिक, और कोई अपने अहलो अयाल का मालिक, कोई सल्तनत, कोई बादशाह, कोई हाकिम। अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी को कोई ना कोई चीज अता फरमाई है, मिल्कियत अता फरमाई, लेकिन ये मिल्कियत और ये हक कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला छीन लेगा। मालिक यौमिद्दीन इसीलिए कहा गया। अल्लाह ताला क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत के दिन का अल्लाह ताला मालिक है। जब इंसान मर जाएंगे, कब्र में दफन हो जाएंगे, मैदान महशर में उठाया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो इंसान किसी भी चीज का मालिक नहीं होगा। वो दिन सिर्फ और सिर्फ सारे अख्तियार अल्लाह के पास होंगे। सवाल होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बतलाओ आज किसकी बादशाहत है, किसका इख्तिदार है, किसका इख्तियार है? हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का दिन जब कायम होगा, अल्लाह ताला आवाज लगाएगा, ऐनल जब्बारून, तकब्बुर करने वाले कहाँ है, जोरावरी दिखाने वाले कहाँ है, सरकश नाफरमान लोग कहाँ हैं? ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, जोरावरी करने वाले, तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? अल्लाह ताला ये निदा 3 मर्तबा लगाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम। कोई आवाज नहीं आएगी मैदान महशर से, फिर खुद अल्लाह ताला जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इख्तियारात हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आज खुद का मालिक है। अभी आज मैंने खुतबा जुमा में एक हदीस बयान फरमाई। क़यामत का दिन ऐसा हैबतनाक दिन होगा, सारे लोग परेशानी के आलम में खड़े होंगे। वो चाहेंगे किसी तरीके से आज हमें नजात मिल जाए, आज किसी तरीके से हमें नजात मिल जाए और हशर की हौलनाकियों से, क़यामत की हौलनाकियों से, खतरनाकियों से बच जाए। हदीस में आता है, क़यामत की हौलनाकी इस कदर हौलनाकी होगी, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोग ये चाहेंगे अल्लाह ताला फैसला कर ले क़यामत के दिन मैदान महशर में, इसलिए कि मैदान महशर का दिन उतना खतरनाक दिन, उतना सख्त दिन होगा। क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा, जहन्नम को लाया जाएगा, 70,000 कड़े होंगे और हर कड़े को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे, जहन्नम जोश खा रही होगी। ऐसे आलम में लोग हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे, कहेंगे आप अबुल बशर हैं, आप अबुल बशर हैं, बनी नो इंसान के बाप हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, आप आज के दिन अल्लाह ताला के सामने हमारी सिफारिश करें। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकार करेंगे। अल्लाह ताला की हैबत, अल्लाह ताला का खौफ इस कदर तारी होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की सिफारिश करने से इनकार करेंगे, कहेंगे तुम जाओ हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे और आकर कहेंगे आप इस रुए जमीन के सबसे पहले रसूल हैं, अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करें, हम परेशान हैं, मैदान महशर सख्ती का दिन है।
तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी परेशान हो जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी गलती याद आएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की गलती क्या थी? जी, वो अपने बेटे के ताल्लुक से अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, या बुनय्या अर्कम मआना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, जबकि आसमान से भी अल्लाह का अज़ाब यानी बारिश नाज़िल हो रहा है, जमीन से भी पानी के चश्मे उबल रहे हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम परेशान है। यकीनन बच्चे की मोहब्बत बड़ी शदीद मोहब्बत होती है। बेटा जब अपने निगाहों के सामने गर्क होने वाला है, डूबने वाला है, तो एक बाप की मुसीबत और एक बाप के दिल का आलम एक बाप ही जान सकता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे थे, या बुनय्या अर्कम मआना वला तकुन मअल काफिरीन, ऐ मेरे प्यारे बेटे आ जाओ, कश्ती में सवार हो जाओ, तुम्हें नजात मिल जाएगी, तुम कामयाब हो जाओगे। वला तकुन मअल काफिरीन, काफिरों के साथ न हो जाना। हजरत नूह के बेटे ने क्या कहा? क़ाल सआवी इला जबल यअसिमुनी मिनल मा क़ाल ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहीम। चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान बेटा था, सरकश बेटा था, इस्यान और तुग़यान में मुबतला बेटा था, अपने बाप का इनकार करने वाला बेटा था। उसने कहा, अब्बा जान, गरचे के आसमान से बारिश नाजिल हो रहा है और जमीन से पानी के चश्मे उबल रहे हैं, मैं इस सैलाब में, तूफान में उस बड़े पहाड़ पर जाकर ठहर जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा। क़ाल सआवी इला जबल यअसिमुनी मिनल मा, मैं उस पहाड़ पर जाऊंगा, ये पहाड़ अल्लाह ताला के अज़ाब से मुझे महफूज फरमाएगा, हिफाजत करेगा। ये गुफ्तगू जारी थी। वक़ाला, बेटे ने कहा था, क़ाल सआवी इला जबल यअसिमुनी मिनल मा, ऐ अब्बा जान, मैं पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा, ये पहाड़ मेरी हिफाजत फरमाएगा। ये गुफ्तगू बाप और बेटे के दरमियान जारी थी। वहाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, अचानक एक बड़ी मौज आई और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को गर्क कर गई। अल्लाहु अकबर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा, एक वक्त के पैगंबर का बेटा उनकी निगाहों के सामने ही अल्लाह ताला की अजाब के जद में मुबतला हो गया, तो शिफ़क़त पिदरी गालिब आ गई, बाप की शफकत गालिब आ गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उस वक़्त दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरा बेटा है, तेरा वादा सच्चा है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बचाने के लिए अल्लाह से दुआ फरमाई, तो अल्लाह ताला ने कहा, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह, ये तेरा बेटा गर्चे के तेरा बेटा है, मगर ये तेरे अहल में से नहीं है, इसलिए कि इसके अमल साले नहीं है, अमल साले नहीं है। यहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह खता की, क़यामत के दिन लोग हजरत नूह के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे, आप इस जमीन के सबसे पहले रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास जाकर हमारी सिफारिश करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी गलती को याद करके, अल्लाह ताला की हैबत को याद करके लोगों की सिफारिश करने से इनकार करेंगे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम लोगों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ इब्राहीम, आप खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपना खलील चुन लिया है, आप अल्लाह के पास जाएं और हमारी सिफारिश करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपनी चीजों को याद करेंगे। एक तो बीमार नहीं थे, उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, दूसरा ये कि उन्होंने
बादशाह वक्त से कहा था ये मेरी बहन है, वो भी अपनी गलतियों को याद करके लोगों से कहेंगे लोगों मैंने फला फला गलती की है और मुझे अपने रब से डर होता है, तुम चले जाओ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। ये लोग मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे और आकर कहेंगे आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह ताला ने आपसे कलाम किया है, आपसे गुफ्तगू फरमाई है। ऐ मूसा हमारी हालत देख रहे हैं, हमारी हालत हालत-ए-ज़ार है, आप अल्लाह ताला के पास जाकर हमारी सिफारिश करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी गलती को याद करेंगे। उनकी गलती क्या थी जी? उन्होंने एक आदमी को मुक्का मारा जिसकी वजह से वो मर गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी गलती को याद करेंगे और लोगों से कहेंगे आज मुझे अपने रब से डर होता है और मेरा रब आज के दिन बड़ा गज़बनाक है। तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाओ। लोग क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे। हजरत ईसा के पास आकर कहेंगे ऐ ईसा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर हमारी सिफारिश करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही जवाब देंगे आज अल्लाह ताला बड़ा गज़बनाक है, आज मुझे अपने रब से डर होता। ऐ लोगों तुम जाओ आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आकर कहेंगे ऐ आखिरी नबी आप इमाम कायनात इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके अगले और पिछले गुनाह माफ फरमा दिया है, आप अंबिया के सरदार हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये हक अता फरमाया है, आप अल्लाह ताला के पास जाएं और हमारी परेशानी का जिक्र करें। हमारी परेशानी को आप देख रहे हैं, ये कयामत का दिन बड़ा सख्त दिन है, हम लोग पसीने में डूबे हुए हैं, परेशानी के आलम में हैं। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह आप जाएं अपने रब से हमारे लिए सिफारिश करें। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की ये परेशानी देखकर अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे और अल्लाह ताला की तारीफ तौसीफ बयान फरमाएंगे और ऐसे कलिमात और ऐसे तारीफी कलिमात बयान फरमाएंगे जो कल क़यामत के दिन खुद ब खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से जारी हो जाएंगे। लंबा सजदा, कितने दिन का सजदा होगा जी? जी माशाअल्लाह जी, एक लंबा सजदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज लगाएगा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद इरफा रअसक, अपना सर उठाओ, सल तुअता, मांगो सवाल करो तुम्हें अता किया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर उठाते हैं और जो मुवहिदीन है, तौहीद याफ्ता हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करने वाले हैं, ऐसे लोगों की सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे और ये लोग कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ऐसा खतरनाक दिन होगा क़यामत का दिन। अज़ीज़ान मिल्लत, क़यामत के दिन के बाद लोगों का हिसाब व किताब के बाद लोगों को जन्नत और जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। जन्नत और जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। जहन्नम भी हक है और जन्नत भी हक है। वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस बात की गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और हजरत ईसा भी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और ये अकीदा रखे जन्नत हक है जहन्नम हक है, उसके बाद इंसान जो कुछ अमल करे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत भी हक जहन्नम भी हक। कल क़यामत का दिन होगा, हिसाब व किताब के बाद अल्लाह ताला लोगों को जन्नत में दाखिल कर देंगे और कुछ लोगों को जहन्नम में दाखिल कर देंगे। कुछ लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल कर देंगे तो ये जहन्नम मजीद लोगों का मुतालबा करेगी,
حدیث میں آتا ہے 1000 میں سے 999 مخلوقات کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم مزید کا مطالبہ کرے گی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. کل قیامت کے دن ہم لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم سے سوال کریں گے. یوم نقول لجہنم، یہ آیت کریمہ 2006 یا 5 میں پہلی مرتبہ آپ کو سنا رہا ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کریں گے کیا تو بھر چکی؟ وتقول هل من مزید، جہنم مزید مطالبہ کرے گی اے اللہ کچھ اور ہے تو اندر ڈال دے، کچھ اور ہے تو اندر ڈال دے. جہنم کا یہ مطالبہ دے کر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا پاؤں، اپنا قدم مبارک جہنم کے اندر ڈال دیں گے اور جہنم سے پوچھیں گے اے جہنم بتا کیا تو اب بھر چکی ہے، کیا تو اب بھر چکی ہے؟ جہنم کہے گی اے اللہ تیری ذات کی قسم بس بس اب میں بھر چکی. محترم حضرات، یہ قیامت کا دن اور یہ قیامت کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو. جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس جسم میں سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے، رمق باقی ہے. اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، انسان مر جائے، قیامت کا دن واقع ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا. اگر انسان قیامت کو بھلا بیٹھے، موت کو بھلا بیٹھے، کفر کے کاموں کا ارتکاب کرے اور معصیتوں کا ارتکاب کرے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، سب سے پہلی منزل قبر کی منزل میں ہی انسان فیل ہو جائے گا. انسان جب مر جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، پہلا سوال ہوگا من ربک. اگر انسان قیامت کو یا قیامت کے منظر کو بھلا بیٹھے، قیامت کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، توحید کو حاصل نہ کرے، شرک کے دلدل میں مبتلا ہو جائے تو پہلا سوال قبر میں ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر انسان توحید یافتہ ہے تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اگر توحید یافتہ نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا. جب پہلے سوال میں انسان فیل ہو جائے، یاد رکھیں کل قیامت کے دن حساب و کتاب میں بھی ایسا انسان فیل ہو جائے. محترم حضرات، بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موت سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.